Good morning. Today we are going to discuss chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. And today's topic is role of hormones. Right? Role of hormones. As you know that adolescence age begins from 11 year to 19 year, ends to 19 year. But for every individual, this range of age is different, right? Individual differences may be there. So we in previous lecture we have discussed about the changes during puberty, right? And there are few changes: change in height, change in body shape, voice change, increased activity of sweat and sebaceous glands, development of sex organ, then reaching mental, intellectual and emotional maturity. Then we have studied about secondary sexual characters. The secondary sexual characters are the changes which takes place during the puberty. In boys, hair begin to grow on the face and they develop braids and mustaches. Hair also grows in the chest, armpit and public region. The testes start to produce sperms. In the girls, their breast develops and hair grows in the armpit and public region. The ovaries start to produce eggs. These changes are controlled by chemical substances are called hormones produced by the endocrine glands. The male hormones which control secondary sexual characters in called testosterone, it produces in the testes. The female hormones which control the secondary sexual characters is estrogen. It is produced in the ovary. The production of these hormones is controlled by another gland called pituitary gland. So we have studied about the hormones already. And there are so many glands. These are called endocrine glands. Now we are first talking about the height, right? We have a chart over here. It is taken from your NCERT textbook. We have already discussed that at the end of 11 year, the boys attain its height 80% of its maximum height, whereas girls 88%. But at the end of 18 years, both girl and boy child attain its maximum height in maximum cases. Exceptions are always there. But in 18 years, the child attain its maximum height, right? Then completion of 8 years, 72 in boys, 77% in girls. This is percentage of height. In 9 years, 75 and 81%. Now see these two 81%. Girl attained the height 81% at 9 years only, whereas boy attained at 11 years. It means girls grow more faster than the boys. But after the year of 18 years of age, both girls and boy gain their maximum height, right? Now how can we calculate the maximum height, यानी possible maximum height आप अपनी कैसे calculate कर सकते हो? There is a formula, right? Present height. This is the present height divided by percentage of full height at this stage into 100. For example, a boy of 9 year old, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना? अब आप देखेंगे क्योंकि ये बॉय है बेटा, तो आप इस चार्ट की इस साइड को यूज करेंगे. 9 ईयर में कितना होता है बॉय के लिए? 75%. और उसकी अभी हाइट है 120, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 120 रख देंगे प्रेजेंट हाइट में और यहाँ नीचे लिख देंगे 75. क्यों? क्योंकि 9 ईयर में 75% हाइट.
तो प्रेजेंट हाइट है 120 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। और अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 160 सेंटीमीटर टॉल। यानी वो 9 साल का बच्चा जब 18 साल की एज में आएगा तो उसकी हाइट इतनी होगी 160 सेंटीमीटर। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों की जो आप लोग पढ़ते हैं क्लास 8th में, 8th वालों की जो एज होती है वो लगभग जो है 13 ईयर्स। ठीक, अब जैसे मान लिया कोई बॉय है तो आप 13 ईयर वाली टेबल पे देखो बॉय। अब मान लिया वो 120 सेंटीमीटर का है अभी, तो 120 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 100 कर लो, हाइट कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आप अपनी मैक्सिमम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला लिया गया है ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। ठीक, तो प्रेजेंट हाइट को आप परसेंटेज से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से हाइट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये सेकंड चार्ट है बेटा। इस सेकंड चार्ट में एक ग्राफ बनाया गया। देखिए इस साइड में यानी वाई एक्सिस में है परसेंटेज इन हाइट और इधर है एयर। इसका मतलब हम इस टेबल को यूज कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर है एयर, एज, ये हो गया परसेंटेज। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ जो है आपके पास किस तरीके से आएगा। देखिए पहले हम बॉय की बात करें तो बॉय के लिए आता है ए वाला ग्राफ, ये आप देख रहे हैं ये वाला बॉय वाला ग्राफ। गर्ल्स के लिए देखें तो ये वाला ग्राफ है। ठीक, अब ये ग्राफ जो है स्टार्टिंग में गर्ल्स के लिए बड़ा है, लेकिन जो वो है गर्ल के लिए वो ऊपर वाला है, बॉय के लिए नीचे वाला है। गर्ल्स की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, लेकिन 18 ईयर तक आते आते दोनों एक ही पॉइंट पे मिलने लगे। ठीक है ना, तो ये एक ग्राफ हो गया। ठीक, जिससे पता लगता है कि 18 ईयर में वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर ले। ठीक, नाउ दिस इज अ डायग्राम which showing the location of endocrine glands। सबसे पहले हेड की बात करें, ब्रेन में हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इससे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। फिर नेक की बात करें तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक, उसके अलावा अगर वो बॉय है तो टेस्टिस में ग्लैंड होती है जो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती है, और गर्ल्स की बात करें तो वहां पे ओवरी में ग्लैंड होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हार्मोन्स स्पर्म्स को और एग्स को मेच्योरिटी देते हैं। अब ग्लैंड हार्मोन्स के बारे में हमने पहले भी बताया था कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ठीक, अब चल रहे हम रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हम केवल यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट को ले रहे हैं, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को ले रहे हैं। ठीक है, हार्मोन्स का रोल। तो आप इधर एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं राइट हैंड साइड में। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन ग्लैंड, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं बेटा, वो टेस्टिस और ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ठीक है ना, स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। फिर क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होते हैं रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं and then it goes to the different parts of the body। ठीक, then what will happen, the stimulate changes in the body at one set of puberty। ठीक है ना, फिर ये क्या करते हैं, उन चेंजेस को स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी की बिगिनिंग में, स्टार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। ठीक, the endocrine glands release hormones into the blood stream to reach the particular body part called target site। टारगेट साइट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट। द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट्स सेक्स हार्मोन्स।
These hormones are responsible for male and female secondary sexual characters. The sex hormones are under the control of hormones from the pituitary gland. जो pituitary gland से हार्मोन्स निकलती हैं वो कंट्रोल करती हैं इन सारे क्या कहते हैं हार्मोन्स को, जो टेस्टिस और ओवरी से में होती है, ठीक है, उनको कंट्रोल करती है. नाउ रिप्रोडक्शन फेज इन ह्यूमन. देखिए, द कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट एट प्यूबर्टी, यानी 11-12 ईयर से स्टार्ट हो जाता है कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. इंडिविजुअल कैन reproduce from the age of 11 to 12 years, right? And it lasts longer time in males than the females. यानी रिप्रोडक्शन में जो मेल होता है वो बहुत बड़ी एज तक कैपेबल होता है, लेकिन फीमेल नहीं हो पाती. The female capacity of reproduction start at puberty and last for the 40 to 50 years. जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो प्यूबर्टी यानी 11-12 साल की एज से शुरू हो जाती है फीमेल्स और 40 से 50 साल के बीच में खत्म हो जाती है. नेक्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन. इन फीमेल्स द ओवरी प्रोड्यूस 1 egg every month, राइट, एंड यूट्रस प्रिपेयर टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग. तो यूट्रस क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग को लेने के लिए तैयार हो जाता है. और तैयार कैसे होगा, इट्स वॉल बिकम्स थिक विद ब्लड वेसल्स. मोटी हो जाती है वॉल उसकी, ये यूट्रस की, उन ब्लड वेसल्स के कारण. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, देन द यूट्रस वॉल ब्रेक. यूट्रस वॉल जो थिक हो गई थी वो ब्रेक हो जाती है एंड कम आउट ऑफ द वेजिना as blood and muscles. This cycle takes place once in every month. It is called menstruation. ठीक है ना. The beginning of menstruation cycle is called menarche. When the menstrual cycle stops at 40 to 50 years in female, it is called menopause. अगर वो साइकिल जो है जो हर मंथ में होती है, एवरी मंथ, वो अगर रुक जाती है 40 to 50 ईयर्स में, तो उसे कहा जाता है मेनोपॉज. और जो शुरुआत होती है उसे कहते हैं मेनार्च. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.